हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस हफ्ते के लिए। प्रभु मेरे जीवन में भी उपवास और प्रार्थना के द्वारा, उपवास और प्रार्थना के माध्यम से प्रभु ने बहुत बातें मुझे भी सिखाया। I thank God for teaching me many things which will benefit my spiritual life through the fasting and prayer we had in the previous week, in the past week. And after that, we discussed many things, even as a class, even as brothers, even as teacher-student relationship, even in that relationship, we discussed many things. And today, for us, it seems like this is not the beginning of the week, this is the beginning and this is the end of the week. Because for us, the beginning starts from Monday, right? हमारे लिए तो एक हफ्ता का शुरू कब से होता है? मंडे से होता है। कुछ लोग मानता है रविवार एक हफ्ता का शुरुआत का दिन है करके, कोई बात नहीं। हमारे लिए शुरुआत भी रविवार है, एंडिंग अंत भी रविवार है। So I thank God for sustaining me throughout this week, even my family, even my sisters, and all those my friends whom I know. And He sustained us in a good way, and all are safe and sound wherever they are in mission field. Once again, I want to thank God for giving me such a wonderful day in my life to stand here and to learn from the word of God. परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ इधर खड़े होकर परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए प्रभु ने मुझे एक अच्छा मौका दिया। And I thank God for such a wonderful experience that He is giving through His word in my life. परमेश्वर मेरे जीवन में देने वाला सारी बड़े बड़े अनुभव के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ये अनुभव के वचन से दे रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। As I was talking to you yesterday morning, or the day before yesterday night also I was talking with some of my friends, and today I just want to put a conclusion by giving some more meaningful message from the word of God, which I got from the word of God. So let's close our eyes. Before that, let's pray to God. Lord, I am going to learn from your word. This is not only preaching, it also kind of a class that we have every Sunday. So pray to God, Lord, I am going to sit in your presence for some more time. नींद नहीं आना है और कुछ सोच नहीं आना है। I should not feel sleepy, Lord. I should not feel that suffocation. I should feel only one thing, that you are speaking to me through your word. परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, Lord. I thank you for this blessed time. I submit entire congregation and myself into their hand. In Jesus' mighty name, we do this prayer. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Once again, I thank God for all the blessings that He has done in my life. परमेश्वर की सारी आशीष के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। Thank you, Ramesh, and thank you all those who led us in worship. Thank you, Bebe, and our team. And for today's meditation, let's turn our Bibles to Galatians chapter 5 verse 7. गलातियों का पत्री अध्याय 5 से 7 तक हम हमारे मन को लेके जाएंगे, हमारा आंखों को भी हम लेके जाएंगे बाइबल में। Let's turn our Bibles to Galatians chapter 6 verse 7. And somebody read in Hindi, somebody read in English also. परमेश्वर कष्टों में नहीं बुरा जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ होता है वही काटेगा। Amen. In English. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will be also reaped. So for today's meditation, I would like to entitle this class as "Do not be deceived." Do not be deceived. I want to entitle this class into one title, that is from Galatians chapter 6 verse 7. Do not be deceived. And I will be taking some time from the psalm which we read today. And we know the psalm is divided into 4 parts. And in all 4 parts, we had the experience, the testimony of one or another person who lived in the past. ये पुराना समय में जो लोग एक से ज्यादा लोग या झुंड जी रहा था, उनके जीवन में आए हुए अनुभवों को वहाँ लिखा है। And in the first section, psalmist calling the congregation and saying, "Let those who are saved." और वहाँ हेडिंग क्या लिखा था? भजन संगीत 107 उसका पहले हेडिंग, "The one who redeemed
से सो, जिसको रिडीम का हिंदी, जिसको छुटकारा मिला वो ये बोलना है करके बोलते गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर हिज लव एंड्यूर्स फॉरएवर। ये बोलते हुए शुरू कर रहा है। चार बातें हैं। पहली बातों में कुछ लोग था मरुभूमि में रेगिस्तान में घूम रहा था, मैं कहाँ जीव करके शहर क्या है पता नहीं था। इन द एंड दे प्रेड टू गॉड एंड गॉड रिडीम्ड देम। सो लेट देम से आई विल गिव थैंक्स टू लॉर्ड। एंड द सेकंड पार्ट, there were people who lived in the darkness, and when they gone through deep darkness and sorrowful situation in their life, they prayed to God, and God in his love protected them, redeemed them. Let them say, I will give thanks to Lord. And the third section, there were some people who did according to their own will, according to their own will, and in the end they were in trouble. Again they prayed to God, God redeemed them. Let them say, I will give thanks to Lord. And in the fourth section, there were some people who took the boat, who started their sailing for their own business, and परमेश्वर ने ही वहां आंधी तूफान लेके आया। God is the one who lifted up the sea waves, sea, and in the end they came to know, and they prayed to God, or he prayed to God, and God redeemed him or them, and let them say, I will give thanks to Lord. So अलग अलग चार संदर्भ की कहानी है वहां। So today's title क्या था? Do you think that the spelling is correct? Don't be deceived. So don't be deceived, yet do not be deceived. Both are same. But do you think that the spelling of deceived is correct? How many of you wrote down the same spelling from the protector? कितने लोग ये spelling लेकर लिख के रखा है? You have that correct spelling in your Bible. Galatians chapter 6 का 7 में लिखा है. What is the correct spelling? D-E-C-E-I-V-E-D. What was the first one I protected here? You have the correct spelling with you. I made you to read from ESV Bible 6 verse 7. Yet now, some of you note down this wrong spelling. So our situation goes along with our spelling, the title also. You have the correct spelling with you, but yet again some of you wrote the wrong spelling. So इस भजन संगीता में अलग चार संदर्भों से पढ़ के जाने के समय उसका तीसरी भाग और चौथा भाग। तीसरी भाग में क्या है? There were people who did according to their own will, and they thought that we are wise men, but verse says they did and they are foolish. And coming to the last one, भजन संगीता 107 खोलिए मेरे साथ। भजन संगीता 107, Psalms number 107, and starting from verse 25. 23. Some went down to the sea in ships, doing business on great waters. They saw the deeds of the Lord, his wondrous works in the deep. For he commanded and raised the stormy wind, which lifted up the waves of the sea. कुछ लोग की कहानी है, वो लोग नाव में बैठकर समुद्र में अपना व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। Then they saw the works in the deep. मतलब वो वहां लिखा है they saw the deeds of the Lord. परमेश्वर का महाकार्य वो लोग देखा। हमारा उपवास, हमारा प्रार्थना, हमारा पढ़ाई, ये सब कुछ क्या करने के लिए और क्या देखने के लिए? परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में देखने के लिए है। So here the context is someone is traveling according to their own will, and they saw the works of the Lord. Where? They saw the deeds of the Lord, his wondrous works in the deep. For he commanded and raised the stormy wind. What they saw there? बड़ा आंधी तूफान उनके सामने आते हुए उन्होंने देखा बहुत बहुत गहराई में। They saw the deep. They saw the wondrous works in the deep. For he commanded and raised the stormy wind. कौन बोलने से वहां आंधी तूफान करके लिखा है? Who is that he? He is God. अपनी मर्जी के अनुसार जिंदगी शुरू किया था। सब कुछ सुनने के बाद परमेश्वर ने एक आंधी तूफान, when you read this,
पैसेज एक नाम आपके मन में आया होगा, कौन था? जोना। किसी के मन में नहीं आया? मैंने इतना अच्छे से बताया था। कुछ लोग या एक व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार नाव लेकर निकल पड़ा। वो भी देखा डीप waters. In the deep waters, he saw the deeds of the Lord. Then he understood, my ways are wrong. In Jonah chapter 1, when God said Jonah to go to where? Nineveh or Tarshish? God asked him to go to? It was a free trip. But when he took a decision, in chapter 1, verse 2, 3, 4, it is written, he paid the money until he took the boat, he boarded the boat and he started sailing towards Tarshish. उन्होंने पैसा देखकर नाव पर चढ़कर कहां जाने के लिए सोच किया. But he reached Nineveh, he did not even spend 1 rupee. How? जोना निनवे में तो पहुंच गया था. कैसा? 1 रुपया भी खर्चा नहीं था. कैसा? वो नाव से पानी, पानी से मछली, and मछली, that big fish vomited him in the land of Tarshish और निनवे. निनवे 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ. फ्री ट्रिप, फ्री ट्रैवल, फ्री. वो भी एक नया गाड़ी पर सफर किया. In that 3 days, the only thing he did was praying. वो 3 दिन में उन्होंने एक ही काम किया. क्या था? Praying. That was the only expense he had. इसमें से मैं क्या सीखा? जब परमेश्वर हमको बुलाकर एक जगह पर नियुक्त करता है, एक रास्ता निकालता है, it will be free only. When the right time will come, he will give everything on the spot. In the same way, coming to the end part of that story, he went and he gave the message. He thought no one will repent. What happened there? कोई मन फिराए नहीं फिराएगा करके सोच में प्रचार किया. लास्ट में क्या हो गया? Then he was sitting under a tree. एक पेड़ के नीचे बैठ रहा था. बहुत अच्छा निशाना मिला, जाकर बैठ रहा था. He was sitting under a tree. And it is written there, परमेश्वर ने पेड़ को भी खड़ा किया, पेड़ को खाने के लिए एक कीड़ा को भी. God is the one who gave him that shadow there because of the tree, and God appointed one small insect there so that the insect will eat away the tree, so that shadow will, which means the journey again आगे है. इधर थोड़ा निशाना मिला करके बैठने के लिए बिल्कुल. I got a better place here and I am comfortable here and comfortable with this place. ये सोच में बैठा था. तब क्या हो गया? पेड़ सूख गया. सूख नहीं गया, वो कीड़ा ने खा लिया. Then जोना को गुस्सा आया. परमेश्वर ने क्या बोला? तेरी मेहनत नहीं था वो पेड़. It was not your hard work. I gave you. मैंने दिया था. मैंने वो खत्म करने का समय का एक कीड़ा को भी मैंने रखा था. परमेश्वर ने खुद बोला. So coming back to the title, what is our title? Do not be deceived. Yesterday, after speaking all these things, I was thinking, God, एक kind of a situation I gone through earlier. मैं ऐसे ही एक संदर्भ से पहले गया था परमेश्वर करके मेरे सोच में था. तब मुझे मेरा एक पुराना वीडियो मेरा पुराना जीमेल से याद आया और दिखाई दिया. पुराना one of my old video that I saw in one of my Gmail which I used that time. आप सबको 2-3 जीमेल होगा. इतने लोगों का एक ही जीमेल है. I think most of you have 2-3 Gmails. Even at that time I had 2-3 Gmails. So ये जो वीडियो जब मैंने बनाया था, मैं संदर्भ बताऊंगी. जब मैंने वीडियो बनाया, कुछ लोग मेरे साथ 3 साल तक था, फिर भी वो लोगों को भी कहानी पता नहीं है, सिर्फ सुलेमान सर को पता है. So इधर मेरा टाइटल क्या था? रनिंग फ्रॉम गॉड, कॉमा रनिंग टू गॉड, कॉमा रनिंग विथ गॉड. मतलब
परमेश्वर की ओर परमेश्वर से भाग के जाना और परमेश्वर की ओर भागना और परमेश्वर के साथ। हमारा टाइटल क्या था? डू नॉट बी। बार बार टाइटल क्या है करके पूछूंगी क्योंकि पहले आप लोग दो का गाया था स्पेलिंग में। So in the first part itself you got deceived. So our title is do not be deceived. ये हमारा टाइटल था। The context of that video, YouTube video was after my studies. मैंने कुछ लोगों से बोला था, it is very hard to sit with certificate without doing anything. सर्टिफिकेट के साथ खाली बैठना बहुत मुश्किल बात है। Without certificate, if you are sitting, if you are roaming here and there, you don't have any problem. You won't feel that much pain in your life. सर्टिफिकेट क्या है? कुछ डिग्री या 12वीं 10वीं में सर्टिफिकेट के साथ खाली बैठना बहुत दर्द बात है। बिना सर्टिफिकेट इधर उधर घूमने का बात है उतना बड़ा नहीं है। कैसा? I had this experience at that time. I went for my studies in Bible college for 5 years, and after that I was thinking God is going to do something. Then God did a great work on this world. That was Corona. परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया। Corona आया, so because of Corona I was sitting at home with certificate. At that time I was thinking I will not do ministry. God already told me to go to Nineveh. That was the calling I received in my 5th year. Then I refused to go to that place because that is very very difficult. सेवकाई बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं मेरा पापा के जीवन में खुद देखा। कभी कभी खाने के लिए खाना नहीं होता है, दुखी होता है, फिर भी प्रचार क्या करना पड़ेगा। Sometimes we don't have happiness, joyful situation in our own house because we are lacking many things, but what we have to preach? परमेश्वर पे सदा। This is what we should deliver. So it was very difficult, so I took a decision that I will not do ministry, just like Jonah. I started traveling to my own world. मेरा खुद की एक दुनिया भर में ट्रैवल करना शुरू किया। तब एक शादी का बात भी आया था। बाइबल कॉलेज में पढ़ के जल्दी निकलने के तुरंत शादी करना है, नहीं तो सेवा में है करके कुछ लड़की लोग छोड़ देगा आपको, क्योंकि सेवा में ये नहीं होगा। Right after your graduation, you have to get married. That was my thought. That was there in my thought because my seniors, some of my seniors told me why, because you are involved in ministry and most of the girls will reject you because you are a pastor, and most of the girls will reject you because their dad is a pastor, क्योंकि उनका पापा का जिंदगी का सफरिंग ये सब कुछ वो लोग खुद देखा है। फिर क्यों खुद जाकर ऐसा एक पादरी से शादी करेगा? फिर सर को तो हंसी आ रही। So this was there in my mind. जैसा बाइबल कॉलेज में पढ़ाई हो गया, राइट आफ्टर दैट कुछ तो करके शादी कर देना। तो एक रिश्ता आया था, लोग हमने बातें किया, गुजरात से एक रिश्ता आया था, मतलब मलयाली लोग है। तो अच्छा से सब कुछ चले गया। मैं सोचा देखो मैं मेरी मर्जी के अनुसार चला तो भी परमेश्वर ने क्या दे रहे, मेरी प्रार्थना का उत्तर नाव तो दे रहे, फिर वो नाव से नीचे गिराएगा करके मुझे पता नहीं था। I was not knowing that God will put me, God will ask me to get out of the boat, मतलब मैं ही खुद वो नाव से उतर के जाना करके मुझे पता नहीं था। सो एवरीथिंग वेंट वेल। मतलब ये जाके बातें सब कुछ करते हैं ना, क्या शगाई मतलब एंगेजमेंट होगा, वहां तक नहीं गया। उसके पहले बातें सब कुछ चला था, बहुत अच्छे से बातें किए, प्यारे प्यारे बातें, बहुत वर्ड्स आउट ऑफ लव, वर्ड्स आउट ऑफ लाइकिंग एंड ईच अदर। वो है, ये है, परिवार देखो परमेश्वर ने लेके आया। समवेयर परमेश्वर का एक बात है समझ आया, ये रास्ता पर इनको आगे भेजा तो बिल्कुल सेवकाई में नहीं। He will not come into my way, he will start sailing to his own way। जैसा हमने अभी एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा, पैसा खर्चा करते हुए ये सब कुछ मैं कर रहा था। ऑलमोस्ट ये दूसरी कहानी कुछ लोगों को पता है, ऑलमोस्ट इधर उधर काम करते हुए मैंने 3.5 लाख से ज्यादा पैसा कमा कर अकाउंट में रखा। एक दोस्त को परमेश्वर मेरे जीवन में भेजने से सारी पैसा चले गया। मैं सोच रहा था उस समय से लेकर एक बात बताता हूँ, जो आगे आने वाले दिनों में होगा मेरे मन का अंदर आ जाता है। The thing that is going to happen ahead in my life, it will already I will come to know today itself. So एक दिन मैं ऐसा बैठ के सोच रहा था क्या होने वाला है पता नहीं, ऐसा जा रहा है जैसा पुराना समय में हवाई मतलब ये
बोट कैसे, नाव कैसे जाते थे, कपड़ा बांध के रखते थे, हवा कहाँ आएगा वहां मोड़ के रख दो, वो वहां ऐसा ही था. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ए बोट इन द ओल्ड डेज. जस्ट आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट दे यूज. द विंड इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, द बोट विल गो टू, and after reaching somewhere the wind will come to the south side, boat will come to. सफर तो कर रहा है, वहां भी नहीं पहुंच रहे, इधर भी नहीं पहुंच रहे, हवा कहाँ आया वहां. हम कभी कभी बोलते हैं ना, आया चल रहे भाई जिंदगी जैसा जा रहा है ऐसा जा रहा है करके बोलते हैं ना. माई लाइफ इज गोइंग लाइक आई डोंट नो, वी ऑलवेज से दिस समटाइम. आई एम नॉट सेइंग एट प्रेजेंट, आई यूज्ड टू से. सो गाना में हमने गाया था जो मेरे में जो मेरे लिए धन था उसको मैं, हाउ मेनी ऑफ यू कैन से दैट जो मेरे लिए धन है उसको मैं छोड़ त्याग दूं. था और है में फर्क है. जो लिरिक्स मैंने आज लिया था करके नहीं था, वहां है करके था. जो मेरे लिए धन है उसको मैं, आप लोग कुछ लोग फिर भी धोखा खाया. उन्होंने गाना गाया था धन था, वहां लिरिक्स में था धन है. सो ये मेरा कहानी ऐसे चल रहा था. मैंने एक दिन सब जीरो हो गया, एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी. सच बात है तो शादी का जो लोग बातें किया था अच्छा से दे, परिवार में इतना प्यार के बातें चल रहा था. मैंने सोचा देखो परिवार मिल गया तो मेरा जिंदगी क्या, शादी करेंगे आगे. सो आई वाज थिंकिंग इवन फैमिली मेंबर्स लाइक ईच अदर, दे आर टॉकिंग कंटिन्यूअसली 3-4 टाइम्स इन अ डे. आई थॉट एवरीथिंग विल गोस वेल. ए डे केम, आई अंडरस्टूड मेरा रास्ता तो सही नहीं है. ये बातें मुझे समझ आ गया, मेरे सामने मुझको समझ भी आ गया. शादी भी नहीं होगा, लोगों के सामने इज्जत भी गिरेगा, खुद का दोस्त लोगों के सामने इज्जत गिरेगा. क्योंकि मेरा ऊपर विश्वास रखकर वो लोग कुछ कोर्स के लिए अप्लाई किए थे, और कोर्स का जो सार ने हमको लेके गया वो हमको धोखा दिया. लगभग 2 लाख रुपए का धोखा हुआ हमने. मेरी भरोसा से मेरा दोस्त लोग अप्लाई किया था. सम ऑफ माय फ्रेंड्स अप्लाइड फॉर सम कोर्स आल्सो. ऑल दिस थिंग्स वर इन माय माइंड. आई थॉट गया. एक दिन आ गया, मैं मेरा दोस्त टोनी सर से पूछा, अरे ये तेरा जीवन में भी ऐसा है था ना, थोड़ा अनुभव बताओ, मैं डीलिंग कर लेता हूँ. हम पूछता है अरे तेरा जीवन में ऐसे हुआ था ना. आई आस्क्ड टू माय वन ऑफ मेरा टोनी, ही केम हियर, यू आल्सो गॉन थ्रू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स एंड जस्ट टेल मी सम आइडिया. ही सेड ऐसा वाला अनुभव में मैं मेरा दोस्त लोगों के सामने साथ जाकर बियर तो पिया था. मैंने बोला उसका भी पैसा नहीं है, बियर पीना है तो भी पैसा किसी से उधार लेना पड़ेगा, फिर वो उधार भरना है तो मैं ही भरना पड़ेगा. सो आई थॉट खत्म, जिंदगी खत्म. देन एक दिन ये जो बाइबल मैंने इधर लेकर खड़ा हूँ, ये शेल्फ में मैंने देखा लगभग 1.5 साल की बात, पढ़ाई के बाद 1.5 साल के बाद ये जो बाइबल है ना, ये इंडिया का कड़ा डाल के रखा है. सो ये जो बाइबल में मेरा शेल्फ में देखा, I saw this Bible in my over there at my home. It was there in that shelf. पूरा कचरा डस्ट का बीच में से बाइबल मुझे मिला. So I took the Bible and I cleaned. Then I was thinking, नया बाइबल है, एक ही लाइन भी नहीं है, पूरा कचरा हो गया. 5 साल से बाइबल मेरे हाथों में था, इधर उधर 2 लाइन मारा तो मारा, क्योंकि उतना ही पढ़ता था बाइबल को. That day I understood, अगर आगे कुछ होना है तो क्या पकड़ना पड़ेगा, यही वचन से ही होगा. वो दिन ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था, रनिंग फ्रॉम गॉड, रनिंग टू गॉड, रनिंग विथ गॉड करके एक छोटा सा प्रचार मैंने मेरा जो बेडरूम की वहां कोने पे बैठ के किया करके मैंने छोड़ दिया. क्योंकि मन का अंदर एक सोच आ गया, कुछ तो बड़ा बोझ मैंने निकाल के रखा. क्योंकि दोस्त से या मम्मी पापा को बता नहीं सकता, उतना बड़ा समस्या है मेरा जीवन में. I never thought that after that जिंदगी ऐसा बदल जाएगा अभी जैसा मैं खड़ा हूँ. The first thing, सब लोगों के सामने इज्जत गिर गया. क्या शादी तक पक्का हो गया था. After some days my friends started asking, तेरा शादी नहीं होने वाला है, कब होगा भाई, इतना दिन खींचो मत, कहाँ खींचने का है, वो कहानी खत्म हो गया करके किसको बताओ. इज्जत की बात है. My friends used to ask, when you are going to get married, because already you have shared everything that is going to happen. How I can tell that nothing is there to think, everything gone. वो सोचने में भी दुख लगते थे. कुछ लोगों को लगा होगा ऐसा वाला संदर्भ में, क्योंकि सपना तो देखा था हमने.
सपना तो देखा था, बहुत फ्यूचर आगे देखा था, उसके बाद लेकिन मैं ऐसा महसूस हुआ ये टूट जाने से, ये सब कुछ ऐसा होने से कुछ अलग तरीका से मुझे तो एक आनंद मेरा मन का अंदर है, मैं सीधा रास्ता पे आया करके आई अंडरस्टूड एंड दैट फीलिंग दैट केम टू माय माइंड वाज I started traveling in the right path, rest God will take care. सो ऐसे ही आज मैं आपके सामने आकर खड़ा हूँ। हमारा प्रचार का टाइटल क्या था? डू नॉट बी डिसीव, डू नॉट बी। We will read from chapter 6 verse 1 to 7। गलातियों का पत्री अध्याय 6 उसका 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। किसी ने हिंदी में आवाज उठाकर पढ़ी। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले और भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर चक्रों में नहीं उड़ा जाता। Do not be deceived, God is not mocked, for whatever one sows that he will also reap। मैंने इतना मेरा पुराना कहानी बताया। सो yesterday as I was thinking, God, what should I learn from all these things that happen in our life, in my life? So I went back to one of my hard work I did when I was studying in my BD or when I was in Bible college. That is गैलेशियंस चैप्टर 6 का 1 से लेकर 10 तक। अगर मैं मेरा पूरा पढ़ाई, मेरा 5 साल का पढ़ाई में मेहनत के साथ किया करके बोलना है तो एक ही है, दैट वाज माय फाइनल ईयर प्रीचिंग। वो मेरा जो फाइनल ईयर का जो प्रचार था, हमारा कॉलेज में हर एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट एक प्रचार करने का था। सो इफ आई टर्न बैक टू माय 5 years ऑफ माय लाइफ एंड आई थिंक what was the main or what was the thing I had done as a hard work, what was the thing I can remember। so परमेश्वर ने मुझे इस वचन दिया गलातियों का पत्री अध्याय 6 का 1 से लेकर 10 तक। मैंने ऐसे शुरू किया था मेरा ही प्रचार। मैंने फिर बोलने के लिए किसी को फुटनोट और बिब्लियोग्राफी देने का जरूरत नहीं है। बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या है? 2 दिन पहले मैंने समझाया था। If I take something from somewhere, I have to give the evidence that I have taken from this। So this is my message, and from this message God gave me many things, and this message starts by saying according to D.L. Moody। D.L. Moody करके एक बड़ा स्कॉलर है, पंडित है, उन्होंने मसीह लोगों के जीवन के बारे में एक कोटेशन बताया। वो वहां बोर्ड लेटर में दिया है, we are leaky vessels and we have to keep right under the fountain all the time to keep full of Christ in order to stay filled and to have fresh supply। उसका हिंदी में बताया तो ऐसा है, हिंदी में भी मैंने आज ट्रांसलेशन करके लेके आया। हम हमारा ईसाई जीवन के बारे में देखा तो हम टपकते हुए बर्तन की समान हैं। तो ऐसा एक बर्तन है, उसका अंदर पानी है तो भी नीचे धीरे धीरे गिरते ही एक जाएगा। इसलिए हम वो फवारे मतलब फाउंडेशन, हिंदी में करेक्ट है, वो जो फाउंडेशन होता है मतलब नॉट फाउंडेशन, फाउंटेन, जहां से पानी हमको मिलते रहता है वहां हमेशा बने रहने का जरूरत है, क्योंकि जितना मिलेगा मैं एक इंसान होने के नाते उतने मेरे जीवन से धीरे धीरे गिरते ही जाएगा। समझ आया कोटेशन क्या है? हम ऐसा एक बर्तन की समान हैं। D.L. मूडी ने बताया हम ईसाई लोग ऐसा एक बर्तन की समान हैं। कभी कभी हमको हमारे जीवन में पूरा भर के मिलता है, लेकिन at times slowly that it will drop out from our life। so we as you know that ये मेरा जीवन में एक कमजोरी है, धीरे धीरे ड्रॉप हो जाएगा करके हम क्या करना करके D.L. मूडी ने बताया, जहां से वो पानी का बहाव है उसकी नीचे ही हमेशा
वो बर्तन को रख देना। You got my point? We are just like a vessel, it has leakage in it. So what we have to do? We have to keep it under that fountain so that even though 2-3 drops will go out, the flow will be coming to the vessel. वो पानी वेसल में बर्तन में भरते ही उसमें थोड़ा थोड़ा गिरते गए, अभी अगर 3 ड्रॉप गया तो 4 ड्रॉप और गिरेगा. Now you got what is the meaning of this quotation? So that is when we compare our life, that is our life. इतना भी वचन हमने पिछले रविवार से लेकर सुन के आया. How many of you remember the main messages, the main headings of the main message that we hear in the fasting prayer? How many sections? 1, 2, 3, 4, 5. 5 सेक्शन में सुने हुए सारी वचनों को कितने लोग याद रखते हैं? मेन मैसेज है आस्किंग. The first day we hear, we have to raise from the dead. मरे हुए लोगों के समान और उनके बीच में से हम. And the second message that came, as you know that you have raised, you are rose. दूसरों को भी हम. What was the second message in the evening? हाँ? वही पास्टर शाम को मैसेज दिया था. क्या था? सुबह सुबह मैसेज दिए थे. हमेशा आनंद होना है परमेश्वर पर और परमेश्वर से और हमेशा आनंद मनाना है. सेकंड, वी हैव टू रेस. एंड द मॉर्निंग आंटी ने क्या मैसेज दिया? वी हैव ए फादर एंड ही विल एंड शी सेड डू नॉट सर्च फॉर जीसस इन बिटवीन द पीपल हु डाइड. जो मरा हुआ लोगों के बीच में इसको कब्रिस्तान में ढूंढो मत करके संदेश मिला. इवनिंग क्या था संदेश जो बीटीएच पढ़ा था उनकी कहानी से? व्हाट वाज द मैसेज इन द इवनिंग? फिर से बनाने का जरूरत है तो परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना. परमेश्वर फिर से ही विल रिक्रिएट यू, ही विल रीबिल्ड यू. इन द मॉर्निंग लतीश पास्टर ने क्या बोला था? इफ यू हैव ए विजन you will face many persecution, many kind of tough situation in your life. Then you have to think, I have a vision, that's why I am going through all this kind of tough times, problems, because my vision is going to fulfill, because God has kept a time. कितने लोगों को याद था सब बातें? कल की प्रचार का सुबह, कल प्रचार हुआ था ना सुबह. What was the message? Yesterday morning. भूल गया. So एक कोटेशन की सवानी है. हम लीक होते रहता है. कितना बढ़ते ही मिलेगा हमको उतना हमारे जीवन से. So we are leaky vessels, and even after knowing, even after having the truth in our hand, sometimes धोखा देगा लोग हमको. जैसा मैंने आपको पहला धोखा दिया था. आपको के हाथों में करेक्ट स्पेलिंग था, मैंने कौन सा स्पेलिंग दिया, कुछ लोग वही लिख दिया. So the context and the parichay, the introduction for today's meditation is, even after knowing all these things, even we know that I am a weak fellow or weak person, I am a leaky vessel, and at times in my life मेरा जीवन से जो पानी मुझे भर के मिला वो लीक होते जाएगा. Even after understanding the weakness that we have, if you know, and even after understanding where we should keep ourselves, हम खुद को कहाँ रखना है करके समझने के बाद भी, if we are not doing that, we are deceiving ourselves. हम खुद को ही धोखा दे रहा है. जैसा बर्नार्डो ने बताया, sometimes temptation will come that I should stop everything and I will go. And the word of God will come from Psalms number 107 verse 23 onwards. Even if you travel according to your own will, there will be a tough time. Then you have to come back. Then you will come to know my ways were wrong. So it is better do not be deceived by ourselves. मैं मेरा जीवन में किया था. Even after, when you look into the life of Jonah, he heard the word of God the second or more than 2-3 times he heard. Then yet again he went according to his will. So coming back to the red verse that is there in Galatians chapter 6. Do not look into the clock. It will go till 1 o'clock. So खुद को धोखा मत
देना। सो ऐसे ही एक संदर्भ में जीने वाला एक कलीसिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इवन आफ्टर दे नो व्हाट इज द ट्रू गॉस्पेल इज, someone came in between and someone shared the other gospel other than what the gospel that was shared from Jesus, and these people started obeying them and going away from the word of God. That is written in Galatians chapter 1 verse 8, 7 and 8. पढ़िए गलातियों के पत्र अध्याय 1 का 7 Do not be 6 lead the one who is taught the word. Galatians chapter 1 verse 6. I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and turning to a different gospel. मतलब संदर्भ ये है, सच्चा सुसमाचार सुनकर विश्वास में आने के बाद भी वो लोग कैसे हो गया और किसी का सुसमाचार वो लोग बताए उसके पीछे चले गया. So in that context, Paul is asking us to do many things आज से सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के सेवक होने के नाते पौलुस ने हमको कुछ करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ऐसा वाला संदर्भ मेरा और आपका जीवन में आएगा. एंड व्हेन वी समराइज दिस ऑल चैप्टर, दैट इज फ्रॉम स्टैंडिंग फ्रॉम चैप्टर 6, अध्याय 6 में खड़े होते हुए पूरा अध्याय पूरा चैप्टर को 1 2 3 4 5 6 को समराइज करना है, तो इन चैप्टर 1 and 2 Paul is speaking about gospel and the authority. सुसमाचार उसका अधिकार क्या है, अध्याय 1 और 2 में बताया. चैप्टर 3 and 4 में इस सुसमाचार बताने वाला लोग इस सुसमाचार को कैसा इस दुनिया पर दिखाना है करके बताया. That is there in chapter 3 and 4. In chapter 5 and 6, if you know the true gospel, if you know the commandment, how we should live, that is the content in chapter 5 and 6. chapter 5 में हम आत्मा का फल भी देखता है, शरीर का खुद की काम के अनुसार खुद की मर्जी के अनुसार काम करने वाला बातें भी सीखता है. Then coming to chapter 6, Paul says that if you know all these rules and regulations, if you know this is the way you should live, if you know you are freed by the grace of God, what do you have to do? Chapter 6 verse 1 पढ़िए. Chapter 6 verse 1 and 2. Walking by the Spirit, or do not be deceived. This was our heading. Under that, the first one, this process demands restoring one another. अध्याय 6 पहला और दूसरी वचन पढ़िए. Brother, if anyone is caught in any transgression, you have our spiritual should restore him in a spirit. So it is written there, if you found anyone caught in any transgression, you who are spiritual in behavior, what he or she should do? We should restore them. So इधर एक अच्छा, मेरे पास ये पूरा का पूरा मतलब उसका एक्सरसाइज पढ़ा है क्योंकि मैंने किया था, इसलिए मैंने पहले बोला अगर मेहनत से कुछ हार्ड वर्क किया तो यही प्रचार था. ये प्रचार के लिए 3 महीना पूरा का पूरा 3 महीने का मेहनत है. ये कितना पेज है, ये 22 ट्रांसलेशन आता है, 12 पेज मेरा 3 महीने का मेहनत था. बहुत अच्छा लगा इस वचन को पढ़ने के लिए, और इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे आशीष भी दिया, वो मेरा गवाही है. सब पौलुस ने शुरू करता है अडल्फोई करके यूनानी शब्द को यूज करते हुए, मतलब ब्रदर्स. वो एक न्यूट्रल, उसका मीनिंग ऐसा आता है बोथ, लड़की और लड़का दोनों के लिए बताया गया है. देन उन्होंने वहां एक शब्द का यूज किया इंग्लिश में, कॉट, CAUGHT. कॉट का मतलब क्या है, मैं कमजोर हूं इसलिए हम मुर्गी या कुछ बकरियों और कुछ पक्षियों को हम पकड़ते हैं ना, हाउ दे आर वीक वी कंपेयर विथ अस, बट किसी ने जाकर शेर को पकड़ता है और शेर हमको पकड़ता है. Someone, do you think that we can go and catch lion as we catch the hen and cat and all? There the situation is different. और lion will catch us. Why? पावर किसको ज्यादा है, उसको पावर ज्यादा है, मुझको पावर. सो इधर ऐसा एक शब्द पौलुस ने यूज किया, अगर एक इंसान वो पावर कमी होने की वजह से, ताकत कम होने की वजह से, इफ ही इज वीक and if he is caught in any transgression, transgression मतलब
हिंदी क्या लिखा, पाप नहीं लिखा वहां, उसका यूनानी शब्द है परप्टोमटाई करके लिखा है, उसका मतलब है सिन नहीं है। इट इज नॉट द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर सिन। सिन मतलब हमारा थियोलॉजी, हम सीखे थे थियोलॉजी, हमारी सिन। सो हियर ट्रांसग्रेशन, अपराध लिखा होगा हिंदी में। अपराध मतलब पापी और अपराधी दोनों के बीच में फर्क क्या है? पापी मतलब पता था नहीं करने का था फिर भी किया। अपराधी मतलब पता था लेकिन कमजोर होने की वजह से गिर गया। सो द वन हु इज कॉट इन एनी ट्रांसग्रेशन, द फर्स्ट ड्यूटी, डू नॉट बी डिसीव्ड, एंड फर्स्ट ड्यूटी दैट वी हैव टू डू, वी हैव टू restore, we have to restore. Somebody please read Markus अध्याय 1 का 19. So this duty or this function that we have to perform, that is not only there in the chapter 6. Paul summarizes entire gospel in these 10 verses. मतलब इस 10 वचनों में सुसमाचार का मतलब, सुसमाचार का संदेश पौलुस ने लिख रखा है। मार्क चैप्टर 1 verse 19 you will find the word that is used for restore is again is already used in Mark chapter 1 verse 19. And going on a little further, he saw James the son of Zebedee and John his brother, who were in their boat mending the nets. सो इधर इन लोगों को यीशु मसीह ने देखकर बुलाने का एक बात है, आप लोग पढ़ा। सो ये रिस्टोरेशन करना है तो हम क्या बनना है करके वचन लिखा। if we are undertaking this responsibility to restore someone, हमारा क्वालिटी क्या होना है? अध्याय 6 का पहली वचन में लिखा, those who are spiritual only can do this task of restoration. So those who know that I have to live a holy life, I have to be spiritual, I have to restore others, if we are not doing that, if we are not focusing on that purpose in your life, I am deceiving myself. Point number 1 समझ आया? So after knowing this is the calling that you received from God, same like you and I, we were traveling to somewhere else according to our own will. God redeemed us, God recalled us, God restored us back, and He told us this is the same duty that you have to do in your entire life. After knowing this, इससे भागने वाला लोगों को कौन धोखा देता है? Who is deceiving you when you understand everything and you leave everything and run according to your own will? Who is deceiving you? Point number 1 समझे सबको? पक्का? So in order to restore, we have to be spiritual. Then verse 2, the burden may be, वहां एक बात लिखा है verse 2, bear one another's burden. हिंदी में? So again the next duty, the function that we have is bearing the burden. Burden मतलब बार, बहुत दर्द लगेगा, बहुत दर्द. It will be weight. It will be, if we feel like it is so heavy to carry. Yet again Paul is saying, you those who are spiritual have to bear one another. So in order to bear one another, what is the quality that we should keep? First thing, being spiritual. Second thing, restore them. After restoring only, you will come to know वो लोगों का जिंदगी क्या है, what is their background, how much they are suffering, how much they are trying to overcome from their situation, and these all things comes under burden. बाहर एक बहुत बड़ा बोझ की समान लगता है ना कभी कभी हमारे जीवन में, कुछ कुछ विषय हम ऊपर सोच कर करते हो. So those who are spiritual, what we should do? We have to bear one another's burden, and it is the word that is used here, bear, it is in futuristic tense. Futuristic मतलब this is not one time process, this is for your future, ये हमेशा करने के लिए है. देन इसमें से क्या सीख हमको मिला? तो गलातियों का पत्री अध्याय 5 के 14 पढ़ के देखना. The verses 6 verse 1 and 2 connected to
Galatians chapter 5 verse 14. You shall love your neighbor as yourself. That's why we got this freedom. That is there in Galatians chapter 5. Then the point number 2, verses 3, 4 and 5. Point number 2, verses 3, 4 and 5. पढ़िए. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. अगर किसी ने खुद के बारे में मैं कुछ हूं करके सोचा, वो खुद को क्या कर रहा है? वही पढ़ाई मतलब पढ़ना लिखना हो गया, डिग्री मिला, ये सब कुछ होने के बाद सोचने में गलती क्या है? हिंदी में पढ़िए वर्स 3. क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है. वर्स 4. पर हर एक अपने ही काम को जांच ले. बस. सो वर्स 3 में पौलुस हमारा एक गुण के बारे में बहुत अच्छा से बताता है. Sometimes we see people, those who are very weak in their faith life, those who are very weak, and those who are kind of what to say, they are caught in many situations of their life. Sometimes we will think, अरे क्या कैसा वाला जिंदगी जी रहा है ये बंदा. सोचते हैं ना हम, मैं तो देखो मेरा जीवन को देखो ठीक है सब. ये सोच के बारे में वचन 3 में पौलुस ने बताया, if somebody is thinking that he is, then he is deceiving. How he is deceiving himself? If you are thinking you are good, if you are thinking you are spiritual, the duty is already there in verse 1 and 2. First duty, restore. Second duty, without doing these two things, if I am thinking I am doing everything, I am deceiving myself. अभी वचन का कनेक्शन कैसे समझ आ गया? So in which context Paulus is saying? He is saying to the people, those who are in Galatia, there were some people those who thought that मैं तो ठीक हूँ, काफी है, वो लोग कुछ भी होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं है. So to them Paulus is saying, if you are saying you are spiritual, without restoring, without bearing one another's burden, if you are thinking you are spiritual, you are deceiving. Now you understood the context and the meaning of that verse. Verse 4, he again says, in the process of this restoring one another or bearing one another, वो लोग जो पाप में गिर गया, वहां गिरने का चांसेस हमारा जीवन में भी. सिनेमा देखने वाला व्यक्ति को सिनेमा मत देखो करके 1000 बार बोल के शाम को बैठकर मैं भी सिनेमा देखा तो कैसे हो गया? वचन में लिखा वैसे हो गया. इसलिए वचन 4 में क्या बताया? Let each one test his own work, then his reason to boast will be himself alone. मैंने उनको रिस्टोर भी किया, मैं मुझको खुद को भी, ये मेरा बोस्टिंग की बात बनना है नहीं, मैंने ये सब कुछ किया करके खड़ा होने के बातें नहीं है. देन वर्स 5 में लिखा है, for each will have to bear his own. ये सब कुछ करने के लिए एक कर्तव्य, there is a responsibility upon you and me to restore, to bear one another, to examine myself. And in the verse 5 it is written, ये सब कुछ काम हम खुद लेके क्या करना है? That is what Jesus told. If you want to follow me, what you have to take? Take up your किसका क्रूस? खुद का. So verse 5 में पौलुस समझाता है, किसी को स्पिरिचुअल बनकर एक अच्छा जीवन जी रहा हूं या जीता हूं करके सोचे तो पहला रिस्टोर, बियरिंग, एग्जामिनिंग, देन all these things you have to think, this is my responsibility, for this only my calling is, मेरा बुलाहट यही है, ये मैं ही करने का जरूरत है, ये मैं ही करना पड़ेगा. I have to bear my own load, I have to bear my own. इधर ये जो वर्स 5 में ये लोड का शब्द दिया है, जैसा ऊपर वचन 2 में दिया हुआ शब्द नहीं है, वहां बर्डन लिखा है, BURDEN, नीचे लोड लिखा है. लोड मतलब मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया था क्लास लेने के समय, इट इज नॉट एन ऑप्शन. ऑप्शन क्या है, मैंडेटरी क्या है? कुछ फॉर्म भरने का समय वहां रेड कलर में स्टार आता है, कभी देखा?
हम कुछ फॉर्म नहीं भरा होगा शायद। इफ यू आर ऑल अप्लाइंग सम एडमिशन थ्रू सम ऑनलाइन वेबसाइट, वहां रेड कलर में एक स्टार आ जाता है, उसका मतलब है मैंडेटरी, इसको भरना ही पड़ेगा। इफ देयर इज नो रेड मार्क, दैट इज फॉर ऑप्शन, मतलब किया या नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हियर इन वर्स 5 व्हेन पॉलस सेज अबाउट लॉर्ड, द वर्ड्स दैट इज यूज्ड देयर, फोर्टियोन करके ग्रीक शब्द है, उसका पिक्चराइजेशन है युद्ध लड़ने के लिए निर्णय लेकर सैनिक ने आगे चला, बॉर्डर में जाकर खड़ा है, बॉर्डर में जाकर खड़ा होकर मेरा बंदूक लाओ भाई करके बोलना तो नहीं होगा, वहां से गोली मारकर हमको। सो द पिक्चर फॉर दिस लॉर्ड, दिस वर्ड लॉर्ड इज an army who is going for war. It is mandatory for him to take up the bag, take up the food, take up the water, take up his own weapon and going and standing in the warfare. Now you understood? So this is not an option. Option है करके सोचा तो किसका जीवन का खतरा है? The army fellow, the army person is thinking, अरे कोई बात नहीं चलेगा, जाकर खड़ा हुआ। Whose life is in danger? His own life. Why? He took a decision that I will be spiritual, I will follow God, I will accept His calling, and I have received all the rules and regulations, and I received all the things that I should receive for the war. Then yet again, मैंने जाकर काली हाथ खड़ा हुआ, वो छाती पर गोली मारकर मुझे क्या करेगा? So this is not an option. You can't think that, or I can't think that the ministry is an option in my life. This is mandatory in my life. I hope you understood. So in between मेरा इमोशंस आया, मेरी सोच के लिए मुझे शादी करना है या मेरा परिवार ने मुझे बुलाया करके गया, तो भी परिवार को पता नहीं है मैं और आप कौन सा युद्ध भूमि में खड़ा है। That is the true right fact. Even your family members don't know the spiritual war that you are going through in your life. So they might say, प्रकाश आ जाओ, अरे शादी करेंगे, थोड़ा पैसा तो मिलेगा, उसके बाद एक बाइक गिफ्ट मिलेगा ना, बाइक गिफ्ट मिलेगा, कुछ जमीन मिलेगा, कुछ घर का सामान मिलेगा, अरे चलेगा, खेती करके ये करके परिवार हमें बुलाएगा। तब मैं बोलता हूँ, even my father and mother don't know the spiritual field or the spiritual war that I am going through. मैं जो आदमी की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरा पापा मम्मी को भी पता नहीं है, उसको पता नहीं है, इसलिए वो लोग प्यार से हमको बुलाएगा। हमको पता है मैंने बॉर्डर में खड़ा हूँ, and this is not an option, this is mandatory. If I go to that place or if I come back, what is going to happen? I am going to deceive. What was our title? Do not be. So even after knowing that this is my calling, this is the purpose I am here for, and this is the only purpose I have to undertake in my life, and this is my responsibility. If we are neglecting it in your daily life also, who is deceiving whom? मैंने वो सिग्नेचर करने का पेपर भी वहां लिख के रखा था, डू नॉट बी। क्यों लिख के रखा था? कुछ लोग था दोस्त को बेचकर साइन करवाता था, वो दोस्त इधर नहीं आया था, उस दिन वो दूसरा दोस्त आकर सिग्नेचर किया। किसका नाम के लिए बुरे काम हो गया? दोस्त का भी, जो रूम में था वो दोस्त का भी। वो दोस्त ने कुछ बोला भी नहीं होगा, प्यार में किया भी होगा। So do not be deceived even after knowing what is your aim, what is your purpose. What was the quotation said by D.L. Moody? Even after receiving all these things, we are like leaky vessels, and the water will drop out, it will leak out, and you know where you have to place your बर्तन। आपका बर्तन को कहाँ रखना है? जहां से वो पानी का बहाव है वहां ही। ये पता चलने के बाद भी नहीं रखा तो we are deceiving. And through my life, verse 6 पढ़िए, walking, demanding, supporting one another. Verse 6 again Paul is saying we have to support each other. वहां एक बात है लिखा है, the one who is sharing the word of God, we have to share all good things with him. ये वचन पढ़ने का समय आप लोगों को क्या क्या याद आया? वचन पढ़ के देखिए, let the one who is taught in the word share all good things with the one who teaches. किसको क्या करना करके लिखा? किसको क्या करना करके लिखा? मतलब किसको? विश्वासी लोग पास्टर को देना है,
या स्टूडेंट्स टीचर को देना है? मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। कहाँ से पढ़ रहे हो? जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले वो भागी करे। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो मॉर्निंग इसका है प्रचार, संजय। उसके बाद so those who are seated over here, we all are going to teach. You are also coming here for prachar. मैं भी प्रचार के लिए आता हूँ, मैं भी टीचिंग के लिए आता हूँ. So the word says very clearly, the one who is teaching will get or should get all the good things from the one who is listening. वचन को बोलने वालों को, वचन सुनने वालों को क्या करना है? शेयर ऑल गुड थिंग्स करके वहां लिखा है, सिंपली नॉट थिंग, वहां गुड थिंग्स करके लिखा है. सो वी हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर इन दिस लाइफ. दैट इज द कंटेंट ऑफ दैट वर्ड्स. मैं या आप आज या कल जाकर खड़े होने वाला लोग है, यू और आई. वी आर गोइंग टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड वी आर गोइंग टू टीच और प्रीच. सो द वर्ड्स वेरी क्लियरली सेज, if I am sitting in this chair, it is my duty to respect the one who is standing in the pulpit or the one who is teaching me. This is not only the teaching only inside the class or in the church. ये ऐसा एक बात के बारे में पौलुस ने लिखा क्लास या चर्च के अंदर टीचिंग करने के लिए. The context says that in my life I get taught through the life of maybe Deepak. दीपक ने एक दिन मेरे पास आकर उनका पुराना कहानी को बताया था. उस दिन मैंने सोचा, इतना बड़ा मतलब गुंडा जैसा जीने वाला व्यक्ति के सामने खड़े होकर मैंने इसकी इज्जत बहुत बार गिराया था. अगर मारना है तो उसे इसमें मार सकते थे. सो मे बी थ्रू योर फ्रेंड, मे बी एक शब्दों से, मे बी बिकॉज ऑफ योर वन थॉट, यू आर प्रीचिंग, यू आर टीचिंग, द वे यू लिव इनसाइड द कैंपस, द वे यू स्लीप इन द रूम, द वे यू आर doing all the necessary things in your life. Your life is an example for your friend. मैंने एक दिन हमारा छोटा पंकज को बुलाकर और किसी व्यक्ति के बारे में बोला, इनका नाम मेंशन करके मैंने बोला, ये व्यक्ति के बारे में मुझे 2 शब्द बताओ, गुड, अच्छा चीज है. इतना हंसने लगा पंकज ने. मैं पूछा क्यों हंस रहे? पता नहीं सर, हंसी तो आ रही है. कल मैंने दीपक से पूछा था, जस्ट गो एंड आस्क योर ओन फ्रेंड, तू मेरे बारे में क्या सोचता है? आज ही पूछ के देखना, खुद का दोस्त का नहीं. देयर आर सम फ्रेंड्स, वो आपका अच्छी साइड ही बताएगा, वो आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि कभी भी इसका बुरा साइड बदल कर एक अच्छा बंदा होना करके वो फ्रेंड कोशिश नहीं. Some of your friends are like they will speak only the right, the good side of you only. I had a friend, Krisban. कच्चा बातें मुंह पे बता के चला जाता है. वो बोल के जाने के बाद फिर बैठ के थोड़ा सोचना पड़ेगा. मैं ऐसा करता था जब we used to study together and I used to tell we will read from chapter 1 to 20 only. Then वो मेरा बातों को ऐसे ही मान लेता है. He will believe in my word and he will read from chapter 1 to 20. What I used to do, I will read till 20 and I will read the remaining chapter also. क्या करता था और आगे भी पढ़ के रखता था. एक दिन एग्जाम में मैंने बोला था यू स्टडी फ्रॉम 1 to 20. एग्जाम में आया 20 to 25. मैं पास हो गया, वो फेल हो गया. उन्होंने बोला तो तू धोखा देता है भाई. 1 से लेकर 20 तक पढ़ा करके मुझे बोला, तुझको पता था मैं कमजोर हूँ, ज्यादा सोने वाला आदमी हूँ, मुझे तुझको पता था. You already know that I sleep more and you told me to read from 1 to 20 and you read 20 to 25. इतना भी भोला नहीं करके बोल के चला गया. उस दिन मैंने सोचा सच तो किया मैंने 1 to 20 पढ़ा करके इनको बोल के मैंने क्या कर दिया था. So there are some good friends में they will even point out your negative shades. नीति वचन में एक वचन लिखा है ना, अच्छा दोस्त उसकी समान है एक लोहा कुछ वचन है. इट इज जस्ट लाइक एन आयरन. वो ऐसा करते रहेगा, हम चमकते रहेगा. अच्छा दोस्त के बारे में एक वचन लिखा है. सो वर्स 6 says I like that. They're coming to the वचन आज हमने पढ़ा. सो इतना बातें पता चलने के बाद पौलुस ने लिखा इन वर्स 7, do not be and God is not mocked. For whatever one sows
that he will also. So हम भी मसीह बना, बाइबल कॉलेज में आया, पढ़ाई कर रहा है। इधर ये बोल के मैंने समाप्त करता हूँ। बाइबल कॉलेज में हमने आया, we are studying and I don't know you are studying or we are studying, we are focusing only on the purpose we are here for, and we are doing all these things. And Paulus says, do not be, ये सब कुछ करके वापस जाकर हमारा एक गवाही का जीवन नहीं है। तो वचन में क्या लिखा? गॉड इज नॉट मॉक्ड। पीपल क्या बोलेगा हमको देखकर? गया था यीशु के पीछे, गया था यीशु मसीह कर गया था बाइबल कॉलेज में, तो डिग्री पढ़ा था, अभी नौकरी कर रहा हूँ। ये क्या करने के लिए गया था? गया था बाइबल पढ़ाई करके, इधर उधर ग्रीक का स्टेटस डालता है, इधर उधर ग्रीक का ये डालता है, हर दिन वचन स्टेटस डालने वाला था, वो प्रचार करने वाला था। नाउ ही डिड नॉट रीच एनीवेयर इन हिज लाइफ। सर्टिफिकेट तो है, 3 साल तक गया है, केरल तक गया तो है, एंड ही इज सिटिंग विदाउट एनी। घर वाला भी बोलेगा। सो थ्रू मी द वर्स सेज दैट whose name is in shame, किसकी नाम की इज्जत गिर रहा है? किसका? No, God's. Because people will say he went back of Jesus, क्या लाभ मिला? कौन सी यीशु मसीह है? So what Paulus is trying to say, if you know the purpose that you are called for, if you know the aim that you should aim, if you know the rules and regulations that you should follow to reach a good life in your future, even after knowing that, if you are neglecting this thing, you will not reach anywhere. You will not reach anywhere. You are deceiving yourself. By deceiving yourself, God's name is in shame. परमेश्वर का नाम का इज्जत भी गिर रहा है। थ्रू गॉड कॉल्ड यू एंड मी, परमेश्वर मुझे और आपको उनके नाम ऊंचा करने के लिए बुलाया। मैं मेरा कर्तव्य को भूलकर, मैं मेरी मर्जी के अनुसार जीने की वजह से मेरे बुलाहट का मतलब निकल गया। आई एम पुटिंग द नेम ऑफ गॉड इन शेम। अभी समझ आया पूरा वचन को? अच्छा समझ आया? सो इफ यू नो यू गॉट फ्रीडम टू रिस्टोर वन अनदर, टू बियर वन अनदर, टू एग्जामिन योरसेल्फ, टू bear your own load, to share one another in our midst or in the midst of your friends. Then Paul says, after knowing these things, हम फंस गया। अभी हम सबको इतना बातें समझ आ गया, कितना लोगों को समझ नहीं आया? How many of you did not understand? You can raise your hand. So you are saying you understood. So we are also trapped in the same way the people of Galatians trapped. ये सब कुछ पता चलने के बाद भी ये लोग नहीं सुधरा, इसलिए पौलुस ने गलातियों के पत्री 3 का पहली वचन में उन लोगों को एक नाम दिया। सो द वन हु अंडरस्टैंड्स दिस थिंग, द वन हु सेड, ये इतना बातें मैंने समझ लिया, इंक्लूडिंग मी, इवन आफ्टर नोइंग दिस, इफ आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग, हु एम आई? रीड गलातियों के पत्र 3 का पहली वचन। कौन है हम? निर्बुद्धि व्यक्ति हूं। मतलब इतना बातें पता चला कर अभी बोला, कबूल भी किया, इसके बाद भी उल्टा किया, तो हु आर वी? सो दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट दैट वाज टेकिंग प्लेस इन द चर्च ऑफ गलेशिया। सब कुछ पता चलने के बाद भी खुद की मर्जी के अनुसार जीते हुए लोगों की बात सुन के जीना शुरू किया। तब पौलुस ने लेटर लिखकर बोला, ये ठीक नहीं है, सुधरने की जरूरत है। इसके बाद बोला, यू आर डिसीविंग योरसेल्फ, व्हिच मीन्स वी कांट से दैट वो पादरी बोलने से, मेरा मम्मी बोलने से मेरे पीछे गया, या मेरा दोस्त बोलने से मैंने ये किया, बिकॉज यू नो द ट्रूथ, यू नो द ट्रूथ। इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, इफ यू आर नॉट ओबेइंग और इफ यू आर नॉट फॉलोइंग, हु आर वी? कितना बड़ा इंसान आकर बोलने दो, ट्रूथ इज ट्रूथ। सो इफ यू नो द पर्पस ऑफ योर कॉलिंग, इफ यू नो और इफ यू अंडरस्टूड चैप्टर 6 गलातियों के पत्री चैप्टर 6 1 से लेकर 7 तक,
What will be the next decision that we should take? That is there in verse 8. For the one who sows to the flesh, on flesh, will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. And let us not grow weary doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So मैं इतना किया मुझको कुछ नहीं होगा करके सोचने का भी जरूरत नहीं. It is written there, you do not give up. God will give you the best thing that is going to happen in your life. But ऊपर वाला बात है, याद रखना है. ऊपर वाला बात है, किया तो मिलेगा, क्योंकि मैं मेरी इच्छा के अनुसार, मैं मेरी शरीर के अनुसार कुछ करके चला जिंदगी जिया तो. For example, when we are studying, when we go for hair cutting, we do a good and best hair cutting which we like. ऐसे करते हैं ना. और बार बार ने ऐसा करने के लिए बोला, मैं तो नहीं करता हूँ. दुकान वाला ने ये अच्छा है करके फोटो दिखाया, ये करके आता है. हम क्या करते हैं? We do the best thing that we like, isn't it? पक्का. So it is written here, if we are doing the same way we are styling our body, if we are not styling the spiritual life also, what we sow we will reap same. अभी कितना मेहनत किया, आने वाला दिनों में उसका फल ही हमको मिलेगा, है नहीं? If you are not doing anything now, आने वाला दिनों में भी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन में सीधे लगा है, जैसा नापा जाएगा हमारे लिए भी ऐसे नाप के देगा. Then verse 9, verse 10. So then, as we have opportunity, do good to everyone, especially to those who are in the household of faith. Amen. मैं उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आया. Each and every verse is connected to the above the verse which is mentioned there. हर एक वचन ऊपर दिए हुए वचनों के जुड़ के नीचे तक आया. So if you understood this thing, if I understood this thing, what I should do? And I will conclude by saying, after this प्रचार, ये जो प्रचार अभी भी YouTube में है, मेरे इस प्रचार के बाद इवैल्यूएशन होता है. इवैल्यूएशन करके एक प्रोसेस है, मतलब हम जो प्रचार किया उसके बारे में फिर टीचर लोग बैठ के कुछ अच्छा बातें बुरा बातें कैसे बोलता है. इन दैट टाइम द फॉर्मर द प्रेजेंट प्रिंसिपल, उन्होंने मुझे मेरे पास आकर एक बात बोला, प्रचार तो अच्छा था, सोच के देखना उसके अनुसार जीवन है या नहीं. He came to me and he said, just think, your preaching was very good, but examine yourself, are you living according to this or not. उस समय का संदर्भ ये था, हम दोस्त लोग मिलके, मैं सच बताया तो इस प्रचार की सोच में हमको एक्सेजेसिस करने के लिए मौका मिला था. वो स्टडी में एक पार्ट था, दैट वाज द पार्ट ऑफ एकेडमिक्स. तो मतलब प्रचार भी करना है, हम एक्सेजेसिस भी करना है. आई वाज थिंकिंग वो भी मैं करना है, ये भी करना है. सो व्हाट आई डिड, आई हैड ऑलरेडी ऑल द ओल्ड एक्सेजेसिस फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस. एक्सेजेसिस मतलब ये है जैसे एक वचन को लेकर उसकी बहुत बड़ा प्रचार, 20 पेजेस प्रचार हम तैयार करना है. So 2 exegesis were there. So what I thought, पुराना कॉलेजेस से एक्सेजेसिस चोरी करके, चोरी नहीं हमसे पूछ कर लिया. What I did, I took all the old exegesis from Faith Theological College Manakala here, from where Prince sir and Sam sir come. Then I saw जो वचन मुझे मिला था दानियल अध्याय 5 1 से लेकर 10 तक, मुझे सेम असाइनमेंट और किसी का मेहनत मुझे पुराना बातें मिल गया. अभी क्या बदलना है उसमें, आई हैव टू चेंज द डेट. वो बिब्लियोग्राफी में डेट मेंशन करते हैं ना, वो पुराना होगा, उसको बदलकर 2020 डालना है. देन व्हाट आई हैव टू चेंज, आई हैव टू चेंज द नेम ऑफ द कॉलेज, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द टीचर, एंड ये सब कुछ बदलकर मैंने सबमिट किया. सो द नेक्स्ट माय फ्रेंड, मेरे साथ और 10-15 लोग दोस्त लगा कर पूछा, अरे हमको भी देना यार, क्योंकि हमारा भी एक्सेजेसिस है, प्रचार है, बहुत मुश्किल है दोनों करना. मैंने दे दिया. उसमें से ज्यादा लोग इधर आकर खड़ा हुआ था. नेलोनी सर था, कृष्ण सर था, टोनी, और जो जितने लोग मेरा दोस्त इधर खड़ा हुआ, हमारा एक झुंड भी था. सबमिट किया, सब कुछ हो गया, वी सबमिटेड दैट. एक दोस्त बहुत अच्छे से पढ़ा लिखना आता था उनको, द वन ही वाज अ स्कॉलर, ही आल्सो कोपिड. So he submitted the work. एक दिन सर ने क्लास के आकर खड़े होकर एक
क्लास लेने का वहां से सारा दूर जाकर कुछ प्रचार जैसा बोलने लगा। बोलने का समय ये था, अगर किसी ने कुछ कमजोरी की वजह से, कॉन्टेस्ट की वजह से कुछ गलती किया तो अभी कबूल कर देना, आई एम रेडी टू फॉरगिव। I did not understand why he said this. Sir was saying, if you have done any mistake in your life, you can come and ask me forgiveness directly in my room. I did not understand anything because हमारा confidence था हमें कोई नहीं पकड़ेगा। So when the word of God comes from the stage, ये हमको जब टक्कर मार देना दिल पे, कुचलो होता है फिर भी चलेगा करके सोच रहे थे। हमारे दोस्त ने क्या कर दिया, सार ने उनको बुलाकर पूछा, Did you copy from somewhere? He said yes. From where? Out of fear, he said, Sir, not only me. इधर कुछ लोग के जैसा है, सिर्फ मैं नहीं है सर, वो भी था। सर ने सोचा इतना बड़ा समस्या हो जाती है कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कॉपी किया तो, क्योंकि हम थीसिस की भी कर रहा है कुछ लोग। पूरा 1 साल बैग घर पे चले जाना है, फिर आगे पढ़ने का बहुत बड़ा समस्या है। Then Sir said, ये देने वाला आदमी कौन है यार, ये मतलब who gave you all this assignment, that is also from 2015 पुराना, वो भी केरल से लेकर आकर तुमको दिया। उन्होंने बताया जिनसन जोसेफ। वही सार था मेरा प्रचार को मदद करने वाला सार, वही सार था मुझे प्रचार सुनकर अच्छा है करके बोला। वो सार ने मुझे बुलाकर बोला, अरे दोस्तों को मदद तो कर दो यार, कोई बात नहीं, you can help your friend, but think who is he, where he will open his mouth. I hope you understood. उन्होंने मुझको एक बात बोला, दोस्तों को मदद करो नो प्रॉब्लम, मदद करने के समय थोड़ा आगे पीछे सोचना वो इंसान कैसे वाला इंसान है, और वो फंस गया तो तेरा नाम बोलने वाला है तो मदद मत। If he is the one like out of fear he will review all these things, do not help them. सर ने मुझे पूछा तूने कहाँ से कॉपी किया, मैंने खोल के बता दिया ये बंदा का है, वहां था साम वर्गीस करके लिखा था, वो साम वर्गीस के मदद की वजह से मैंने इधर आया। तो वहां ऐसे लिखा सर, मैंने बोला सर 3 दिन में मेरा प्रचार है, माफी कर दो 3 दिन के लिए। 3 दिन जैसा होते होते मैंने पूरा मेहनत के साथ एक्सरसाइज करके आपको दूंगा, क्योंकि स्टेज में खड़े होने के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है वॉकिंग बाय स्पिरिट। सर ने बोला ठीक है 3 नहीं 1 हफ्ता ले लो, आफ्टर प्रचार तुम मेरे पास आकर कबूल करते हुए सबके नाम बताना है करके बोला। मैंने बोला हाँ ठीक है मैं आता हूँ। आफ्टर प्रचार ही केम टू मी एंड ही टोल्ड, प्रचार तो अच्छा था, एग्जामिन योरसेल्फ। मैंने सोचा अरे पुराना बात है ना, वो भी भूल गया होगा, मैं भी भूल गया, मैं नहीं गया, क्योंकि गया तो ये 15 लोगों का नाम मुझे पसंद नहीं था, मतलब धोखा दिया करके नाम आता है। सो आई डिड नॉट गो, एंड इन द एंड हमारे यूनिवर्सिटी से जो एकेडमिक डीन ने हमें बताया, यू गाइस आर नॉट एलिजिबल टू राइट एग्जाम, 1 साल के बाद आकर एग्जाम लेंगे। तब पता चला छोटी सी बात था, वो छोटी सी बात को उसी दिन प्रॉब्लम को सीधा करने पे छोड़ के, इट वाज अ स्मॉल इशू बिकॉज ऑफ द नेग्लेक्ट दैट कैरेक्टर। वो नेग्लेक्ट किया मैंने, कैसे हो गया, मेरे साथ कितने लोग जा रहे हैं अभी घर पे। तब मुझे बहुत दुख लगा। आई वेंट टू सर नेटवर्क, सर मुझे धोखा देना मन नहीं था इसलिए मेरा नहीं आया, आई डोंट वांट टू टेल अदर्स नेम, बिकॉज जो लोग बाकी लोगों को सर नहीं पकड़ा, उन लोगों को वो पेपर में A- A ग्रेड B ग्रेड मिला है। उसमें मेरा दोस्त नेलोनी था, उनको A+ मिला, वहां लिख के रखा है वेरी गुड वर्क। मैंने सर से बोला सर ऐसा है समस्या, मतलब आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। जब मैंने कॉलेज में वापस गया था सब बातें मैंने सर को बताया। मैंने बोला सर आप कुछ लोगों को बहुत अच्छा नंबर भी दिया है, मैं कैसा आपके सामने आकर ये बंदा मुझसे लिया करके बोल सकता हूँ। ऐसा कुछ आगे चलते चलते समस्या सेटलमेंट हो गया। तब मुझे पता चला जो स्टेज पे खड़े होकर प्रचार करता है तुरंत मार भी मिलता है। सो डू नॉट डिसीव योरसेल्फ। सच बताया तो वो जो असाइनमेंट मैंने कॉपी किया था, इधर आप लोगों को पढ़ाने के लिए शाम सर करके एक सर आता है, जो सर मेरे गवाही अच्छा गवाही बताकर मुझे इधर ज्वाइन करवाया, उनसे मेरा रिश्ता मेरा पुराना समय से, उनको भी पता नहीं चला था उनकी असाइनमेंट मैंने कॉपी किया। वो कॉपी करने से मैं पकड़ा गया कॉलेज में, उनकी वजह से मैंने आज इधर खड़े होकर आपको गवाही बता रहा हूँ। मतलब कनेक्शन कैसे आया मुझे भी पता नहीं,
परमेश्वर सब बातों पर मुझे मदद की, इतना बता सकता हूँ। देन आई लर्न समथिंग आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग, आफ्टर नोइंग हु इज माय फ्रेंड, फिर भी जाकर कुछ कर उनका नाम बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, मैंने ही खुद को धोखा दिया। सो द मैसेज एंड द टाइटल आई जस्ट वांट टू वाइंड अप हियर, डू नॉट डिसीव योरसेल्फ आफ्टर नोइंग द truth. I hope you understood today's class very clearly. So whenever you read Bible, make sure Abhi, now you understood the aim and the calling that you have in your life. So even after knowing that पुराना जिंदगी पे जाना है और अपनी मर्जी के अनुसार जाना है करके निर्णय लिया तो क्या होगा? You are deceiving yourself. I did that and I know the pain. मैंने किया था, दर्द क्या है भी समझ में आया था, इसलिए मैंने एडवाइस भी कर सकता हूँ। ये हम आंख बंद करेंगे, आंख बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के समय लेट्स अराइज इन आवर प्लेसेस, लेट्स अराइज इन आवर प्लेसेस।